self. और जिस बातों के योग्य हम थे वो सब उन्होंने ले लिया। He has taken upon ourselves. उन्होंने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया। At his side, उनके साइड में, at his side, उनके साइड में, side was pierced. और यहाँ पर भाला छुपाया गया। After that, what happened? उसके बाद क्या हुआ? The water and blood came. उसमें से खून और पानी The बहा। water and blood came. खून और पानी बहा। When we have cut in our body, जब कभी हमारे शरीर को काटा जाता only है blood comes. केवल लहू आता है। But from the side of Christ, लेकिन यीशु मसीह के साइड से what happened? क्या हुआ? The blood and water came. खून और लहू आया, पानी आया। Water stands for two things. और पानी दो बातों के लिए है। One for the word of God, एक तो प्रभु के वचन, and second for the people. और दूसरा लोग। One for the word of God, एक परमेश्वर का वचन, and second for the people. और दूसरा लोगों के लिए। Word of God means परमेश्वर का वचन when the water came forth, जब पानी बहा, that means revelation knowledge came forth from his side. इसका मतलब ये है कि प्रकटीकरण का ज्ञान वहां से आया। When water came again, और फिर जब पानी वापस आया, when water came, पानी आया, that means it stands for people. वो लोगों के लिए होता है। It stands for people. वो लोगों के लिए है। Bible says, बाइबल कहती है, in Isaiah chapter, Bible says in Isaiah chapter 50 verse 6. और इशाया 56 में कहा गया बाइबल में, 50 verse 6. 50 में 6, That we can, the multitude of sea shall be converted unto thee. और जो है बहुतायत का समुद्र जो है तुम्हारी ओर आएगा। Sorry, Isaiah chapter 60 verse 5. और क्षमा करें, इशाया 60 में 5। Bible says, बाइबल कहती the है, multitude of sea shall be converted unto you. और जो है समुद्र की तरह लोग, जो समुद्र की तरह जो चीजें हैं जो तुम्हारी ओर परिवर्तित होगी। Multitude of sea shall be converted unto you. और बहुगुणी समुद्र तुम्हारी ओर आएगी। That means what? उसका मतलब क्या है? When the water came from the side of Jesus, और जब यीशु मसीह के साइड से जो पानी निकला, what happened? क्या हुआ? Water stands for people. पानी जो है लोगों के लिए खड़ा है। Listen me carefully what I'm saying. और मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुने। When Adam was created, जब आदम बनाया गया, when he was created, जब आदम की सृष्टि हुई, that moment what happened? तब क्या हुआ? Something was missing. कुछ तो कमी थी। What was missing? क्या कमी थी? God created everything good. परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा But बनाया, one thing was not good. लेकिन एक अच्छी बात थी। Man should not remain that was not good. और मनुष्य अकेला रहे, ये अच्छी बात नहीं थी। So what happened? तो क्या हुआ? God created from the side of Adam. तो आदम के साइड से He took one rib उन्होंने एक रीढ़ की हड्डी निकाली, and he made Eve. और उन्होंने हवा को बनाया। He made Eve उन्होंने हवा को बनाया from the side of Adam, और आदम के साइड से, from the side of bridegroom, और वह उस दूल्हे के साइड से, from the side of bridegroom. और दूल्हे के साइड से A bride came. एक दुल्हन आई, A bride came. एक दुल्हन आई। So Jesus is the bridegroom. तो यीशु मसीह जो है दुल्हा है। Jesus is the bridegroom. तो यीशु मसीह दुल्हा है। When the water came, जब पानी आया, that means what? तब मतलब क्या है? Bride came. और दुल्हन आई, Bride came. दुल्हन आई, Bride came. दुल्हन आई, Church is bride. और कलीसिया दुल्हन है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? When his side was pierced. जब उनका यहाँ पर भाला चुभाया गया, When his side was pierced, जब यहाँ पर उनको चुभाया गया, water came. पानी बहा, That means people came. इसका मतलब लोग निकले, That means church came. उसका मतलब कलीसिया आई। Hallelujah. हालेलुया। When Jesus' side was pierced, जब यीशु मसीह के साइड में जब चुभाया गया, the church came from the side. और उस साइड से जो है कलीसिया निकली, Church came. कलीसिया आई। And the multitude of water, Bible says. और जो बहुगुणी पानी कहा गया है, Multitude of water. बहुगुणी पानी, That means what? वो मतलब क्या है? Church and the church growth. चर्च और चर्च की बढ़ोतरी, Church and the church growth. चर्च और चर्च की बढ़ोतरी। May I tell you one thing? मैं एक बात कहूँ आपसे, 2000 years before, 2000 साल पहले when the side of Jesus was pierced, जब यीशु मसीह के साइड को चुभाया गया, side of Jesus was pierced, जब यीशु मसीह के साइड में चुभाया the गया, water came. पानी बहा, The church was born from his side. और उस साइड से जो है कलीसिया निकली। And the multitude of sea stand for church growth. और जो बहुतायत का समुद्र जो दर्शाता है कलीसिया की बढ़ोतरी को। That means church and church growth came from the side of Jesus. इसका मतलब कलीसिया और कलीसिया की बढ़ोतरी जो है यीशु मसीह के साइड से निकला, It came from the side of Jesus. और वो जो है यीशु मसीह के साइड से निकला। So our church and church growth came from the side of Jesus. तो हमारा चर्च और चर्च की बढ़ोतरी जो है यीशु मसीह के साइड से। So what you have to do? तो आपको क्या करना है? What we have to do? हमें क्या करना है? I urge the pastors. और मैं पासवानों से कहता हूँ, They have to just listen to the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की सुने केवल, They have to apply the principle of Christ, what Christ is saying. और उन्हें जो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है उन After सिद्धांतों को अपनाना after है। that what will happen? उसके बाद क्या होगा? We will have a surplus church growth. और फिर जो है हमारी चर्च की बढ़ोतरी होती We जाएगी, will have a church growth. और हमारी चर्च की बढ़ोतरी होगी। May I tell you one thing? मैं आपसे एक बात कहूँ, Some days back,
कुछ दिनों पहले, some days back, कुछ दिनों पहले God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे कहा, God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे कहा 2011 2011 is going to be a new beginning for the body of Christ. और मसीह की देह के लिए एक नई शुरुआत होगी, Going to be a new beginning for the body of Christ. और मसीह की देह के लिए एक नई शुरुआत होगी। God is going to start a revival in this 2011. और परमेश्वर 2011 में एक बेदारी लाएगी, He is going to start a revival. और वो एक बेदारी लाएगी। And what will happen? और क्या होगा? Many churches are going to see the supernatural things. और बहुत से चर्च जो है अलौकिक बातों में क्रिया करेगी, They are going to see the supernatural things. और वो जो अलौकिक बातों को देखेंगे। Many men of God, many people of God, they are going to see the angelic visitation. और बहुत से परमेश्वर के दास दासी जो है स्वर्गदूतों को दर्शन देखेगी In this 2011, और ये 2011 में, this is the plan of God. और ये प्रभु की योजना A है, new beginning for the church for the body of Christ. और एक नई शुरुआत मसीह की देह के लिए होगा, God is going to start a new beginning. और परमेश्वर एक नई शुरुआत करेगा, A revival is going to start. एक नई बेदारी आएगी। That's what the Bible says. यही बाइबल कहती है, That's what God says. और यही परमेश्वर कहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। 2000 years before when Christ came, 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आए, when he came, जब वो आए, he started his ministry at the age of 30. और उन्होंने अपनी 30 साल की उम्र में जो है सेवकाई शुरू की, At the age of 30. 30 साल की उम्र में, And he used to go to Jerusalem. Often he goes to Jerusalem. और वो बार बार यरूशलेम जाया करते He थे, used to go to Jerusalem. वो यरूशलेम जाया करते थे। And one day he went to Jerusalem. और एक बार वो यरूशलेम गए, When he went to Jerusalem, जब वो यरूशलेम गए, he went to Jerusalem temple. और वो यरूशलेम के भवन में, मंदिर में गए, And near that what was there? और उसके करीब क्या था? A sheep gate was there. और एक वहाँ पर जो है गेट था, Sheep gate was there. और वहाँ भेड़ की जो है द्वार था, And near the sheep gate, और उस भेड़ के द्वार पर pool was there. वहाँ पर एक पूल था, And near the pool, 5 porches were there. और उस पूल के 5 जो है अटारे थे। I want to read some scriptures from John chapter 5. और मैं जो है यूहन्ना 5 से पढ़ूंगा। I will finish within 10 minutes. After that we are going to pray. और 10 मिनट में हम समाप्त करेंगे, Please. उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। Please bear with me. मेरे साथ आप रहिए, Our sister will read in Hindi directly. और मैं हिंदी में डायरेक्टली पढ़ूंगी। John chapter 5, 1 to 8. यूहन्ना 5वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। So the Bible says, तो बाइबल कहती है, Jesus went into one of the feast. और यीशु मसीह जो है एक पर्व में गए, And some Bible scholar says, और कुछ बाइबल स्कॉलर कहते हैं it was the festival of Pentecost. और वो जो है पेंतिकोस्त का पर्व था। And when the festival of Pentecost comes, और जब जो है पेंतिकोस्त का उत्सव आता है, something different happens. कुछ अलग होता है। Bible says, बाइबल कहती है, when the days of Pentecost fully came, और जब पेंतिकोस्त का संपूर्ण दिन आया, Holy Spirit came upon everyone. और पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आया। Everyone look at here. सभी लोग यहाँ ध्यान दे। I believe today, आज मैं विश्वास करता हूँ, Holy Spirit is hovering over us. पवित्र आत्मा हम पर मंडरा रहा है। Holy Spirit is hovering over us. हमारे ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा So है। Jesus went into this feast.
और यीशु मसीह इस पर्व में उत्सव में Jesus गए went into this feast. और यीशु मसीह इस उत्सव में गए And what happened? और क्या हुआ There were many Jews were there. और वहाँ बहुत से यहूदी थे So much of Jews were there. बहुत से यहूदी वहाँ थे And he went to the ship gate. और वो भेड़ के द्वार पर गए He went to the ship gate. और वह भेड़ फाटक पर गए Near the ship gate there was a pool called Bethsaida, और वहाँ उस भेड़ फाटक के पास जो है कुंड था जिसे बेतसदा कहा जाता है which have 5 porches. और वहाँ पर जो है 5 जो है कुंड थे 5 porches. और वहाँ पर 5 ओसारे थे And in that 5 porches, और उस 5 ओसारे में there were many crippled, lame people, sick people were kept there. और वहाँ पर बहुत लंगड़े लूले बीमार लोग थे Many sick people were there. और वहाँ बहुत से बीमार लोग थे And what happens? और क्या होता है When the Jews people, जब यहूदी लोग when they were coming into the temple, जब वे मंदिर में आते हैं when they were coming to the temple, जब वे मंदिर आते हैं and they used to give the offering to these people. और वे इन लोगों को जो है दान दिया करते थे The Jews people used to give offering to these people. और ये यहूदी लोग इन लोगों को दान दिया करते They थे used to give clothes to these people. और इन लोगों को वो कपड़े दिया करते थे They used to give food to these people. और इन लोगों को वो भोजन दिया करते And थे so these people in these porches, the sick people, they were survived day by day. और इसी वजह से जो है इस ओसारे पे बीमार लोग जो है दिन ब दिन जिया करते थे And what used to happen? और क्या होता था In certain occasion, और कभी कभी और कभी कुछ मौकों पर once in a year, साल में एक बार angel was descending from above. और जो है स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आते थे Angel was descending. और स्वर्गदूत ऊपर से नीचे And the आते angel was stirring the water. और ये स्वर्गदूत आकर वो पानी हिलाते थे Inside the pool, he was stirring the water. और कुंड में उस पानी को वो स्वर्गदूत हिलाते And थे after stirring the water, और वो पानी हिलाने के बाद what the Jews people were doing, और यहूदी लोग क्या करते थे they तब used to pick some people, they would try to put into the water. और वे यहूदी लोग उन बीमार लोगों को उठाकर उसको पानी के कुंड में डाला करते And the थे person who was thrown into the water, first person who was thrown into the water, और जो पहला व्यक्ति उस पानी के कुंड में डाला जाएगा that person would be healed. वो चंगा हो जाता And था after that, what happened? और उसके बाद क्या होता था Every sick person have to wait for the another chance, और हर दूसरा बीमार व्यक्ति जो है अगले मौके का इंतजार में रहा करता था another occasion, और एक मौका that the angel would come, फिर से वो स्वर्गदूत नीचे आएंगे stir the water. पानी हिलाएंगे Jews people would come. और यहूदी लोग आएंगे They would take any sick person, और कोई यहूदी आकर उसमें से कोई एक बीमार को उठाकर and they used to throw into the water. उस पानी में डालते थे Once in a year. वो साल में एक बार होता था What happened? क्या होता है There was one man was there वहाँ पर एक व्यक्ति था who was laid there from 38 years. जो 38 साल से वहाँ पड़ा हुआ था From 38 years, 38 साल से he was having infirmity. और उनको दुर्बलता थी He was not paralyzed. और वो जो है पैरालाइज था He was not paralyzed, वो लकवा में नहीं था but he was having infirmity. लेकिन उनको दुर्बलता थी From 38 years, 38 साल से 38 years he was lying there. और 38 साल से वो वहाँ पड़ा हुआ था And what was happening? और क्या हुआ Sometimes the Jews people were picking him up. कभी कभी यहूदी लोग आकर उसे उठाते Sometimes they used to pick him up. कभी उसे उठाते But what happened? लेकिन क्या होता था No, some other person was going there. लेकिन उससे पहले कोई और आ जाता Sometimes no one was there to pick him. और कभी कभी कोई उठाने के लिए होता नहीं था Like that is continued for 38 years. ऐसा 38 साल